तो क्या भारत एक स्लोडाउन की तरफ जा रहा है? एक तरह से आप देखें तो कुछ जो शॉप्स हैं जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ये काफ़ी जो आप देखेंगे तो इतना फुटफॉल्स हैं वो गिर रहे हैं। HDFC बैंक के रिजल्ट कल आए, उसमें इतना थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है। दिख रहा है कि एक रिटेल कंज्यूमर स्ट्रेस में है, अर्बन कंजम्पशन थोड़ा स्ट्रेस में लग रहा है। और एक हम आंकड़ा ढूंढ रहे थे कि जो जॉब्स भी है अर्बन एरियाज़ में, वो कुछ जो है स्ट्रेस आ रहा है लोगों को जॉब्स मिलने में। ठीक है, अगर आप मैं कुछ डेटा को आपके सामने रखना चाहता हूँ, ऐसे नहीं बोलूँगा कि you find that data released this week by the periodic labor force survey shows urban youth unemployment is nearing 19%, which means that education alone cannot guarantee employment or stability. According to the recent data from the periodic labor force survey, urban unemployment among the 15 to 29-year-olds has jumped nearly a percentage point in 1 month, hitting 18.8% in June. Most alarming was a sharp decline in young women's participation, down to 20.6% from 22.4%. So as a result, you're finding that many youth are turning to freelance work, टू दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बोल रहे हैं कि हम एक ऐप बना रहे हैं, सभी लोग ऐप बना रहे हैं। ठीक है, और कहाँ डालेंगे उसको? क्लाउड पे रखेंगे। ये आप सबकी हो गई क्योंकि नौकरियां मिल नहीं रही हैं। तो अच्छा है, ऐप बनाते हैं, ऐप को अगर मोनेटाइज करें वो अच्छा है। आज तक वर्ल्ड में किसी ने भी मोनेटाइज नहीं किया है, किसी भी एक किलर ऐप नहीं है किसी के पास, इवन एप्पल के पास नहीं है। ठीक है, तो क्या एक इंडिया का जो रंग रूप देखा जाए, अर्बन मिडिल क्लास है वो का उसका कंजम्पशन गिर रहा है, तो इज इंडिया हेडिंग फॉर अ मेजर इकोनॉमिक स्लोडाउन? इट्स परफॉर्मेंस जो है द लास्ट 2 years हैज बीन आउटस्टैंडिंग, एवरेजिंग 7.85% per year, but the tariff pressures from President Donald Trump has shaken the Indian sentiment to quite an extent. Even the Indian markets over the last few weeks, it has fallen over, Nifty has fallen over 600 points. World Bank has cut its estimate of India's GDP growth in 2025-26 from 6.7% to 6.3%. That economy has so far been highly resilient because of exceptional macroeconomic performance that India has witnessed. The current account deficit is close to zero when most emerging markets are running very high deficits. India's inflation in June was just 2.1%, the lowest since 2019 and far below the RBI target of 4%. तो ये तो फेडरल रिजर्व जो कुछ और चाहता है अमेरिका में, यहाँ वो तो 2% चाहता है, उसको 3% मिल जाता है, और यहाँ वो 4% चाहते हैं, उसके नीचे मिल जाता है। तो मल्होत्रा साहब के तो बल्ले बल्ले हो गए। The rise of the global capability centers in India has led to thousands of multinationals setting up global hubs for engineering and research and development with an emphasis on artificial intelligence. This is skilling Indians to a degree earlier thought unattainable. India's startup culture has also succeeded in attracting billions of global dollars and creating over 100 unicorns, which means unlisted companies worth over $1 billion. However, हर चीज जो अच्छी के पीछे थोड़ा बुराई भी आती है। मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता, भारत का तो मेरा सबसे प्रिय देश है। मोदी जी सुनेंगे तो बोलेंगे क्या बोल दिए आप, सबसे प्रिय प्रधानमंत्री हैं। चलो, some of India's biggest companies have complained of slack demand for 2 years. Fast moving consumer goods, FMCG, are unfortunately not moving so fast. इतना जल्द नहीं भाग रहे। Nestle's annual report is titled Adversity Makes Us Stronger. मुश्किलात में हम ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। नेस्ले की रिपोर्ट कह रही है This optimism may or may not be vindicated, but the adversity is not in doubt.
Hindustan Unilever sales have been disappointing. Asian Paints, bellwether for the construction and the paints industry. Of course, all the competition has come with a vengeance. With the Birlas and now the Jindals also behind their neck. Yet conditions have been slack for almost 3 years in the case of Asian Paints. Many industries worry that Trump's high tariffs will encourage massive dumping on India and other markets by China and Vietnam, exacerbating the problem further. क्योंकि बहुत सारा माल चाइना और वियतनाम डंप करेगा अगर अमेरिका और चाइना के बीच में जल्दी से एक अच्छा टैरिफ एग्रीमेंट नहीं बनता है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP rose by just 2.4% in April and 1.2% in May. Shockingly low figures for what is supposed to be the fastest growing economy in the world. In May, the production of non-durable consumer goods, which approximate to the FMCG sector, that contracted 2.4%, echoing the woes that many people are worried about. Auto sector is in very, very bad shape. Overall sales were down 5.1% in the first quarter of FY 25-26 as per data from the Society of Indian Automobile Manufacturers. Passenger cars were down 11.2%, though the SUVs were in positive territory. Maruti Suzuki said it has very few orders for its small entry-level cars. चलो हम ही जाके ले लेते हैं. मैं ढूंढ रहा था छोटी सी स्मॉल, कहाँ जल्दी से जाना हो. भारत ये बॉम्बे की कभी गलियों में ना बड़ी गाड़ी तो कोई लेके जाना बहुत मुश्किल है. छोटी गाड़ी में आप और मैं बैठ के चला देंगे. जाके हम ही मारुति का सेल बढ़ा देते हैं. Commercial vehicle sales were down in the quarter, were down 0.6%. Sales of motorcycles were down 9.2% and of scooters 0.2%. कोई मुझे ट्वीट कर रहा है कि स्कूटर भी चल जाएगा. ठीक है भाई, जैसे आप चाहें. एक्सपोर्ट्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, आपको तो पता ही है. लेकिन इन जून में आपने देखा होगा कि गुड्स एक्सपोर्ट्स लिटरली फ्लैट थे. स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यूजुअली सक्स इन इंपोर्ट्स, ज्यादा आता है. लेकिन फॉलिंग इंपोर्ट्स भी गिर रहे हैं अभी. टिपिकली इंडिकेट फॉलिंग डिमांड इन एन इकोनॉमिक स्लो डाउन. The data excludes services exports which remain strong. वो तो हमारा मेन स्टे है ही है. भारत तो बैकएंड है ही है ना वर्ल्ड के लिए. रिसेंट आर्टिकल एक आया था फाइनेंशियल टाइम्स में जो कह रहा है कि भारतीय जो मिडिल क्लास है वो थोड़ा ज्यादा डेट में पड़ रहा है. हर चीज को आप उठाइए, क्रेडिट कार्ड पे लगाइए. पे बाय नाउ पे लेटर. Middle class is under high debt and under financial strain, which may be one reason for reduced consumer demand. So therefore, GDP growth slowed down from 9.2% in 23-24 to 6.5% in 24-25. So the economy already slowed down. But the important thing is that you have to remember that the 9.2% की जो फिगर थी, it was boosted by an exceptionally low measure of inflation called the GDP deflator. Okay, so the growth the next year should have been artificially understated by a reversal of the same factor. Okay, in such circumstances, the officially figure of 6.5% next year looks very, very good. The best way to अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, द एवरेज ऑफ 2 सालों का है 7.85, जो ठीक है. गवर्नमेंट के फोरकास्ट से भी बेटर है. इतना निराश न होइए. लेकिन ग्रोथ इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 24-25, द मोस्ट रीसेंट रिजल्ट लेवल वाज एट एनकरेजिंग 7.4%. तो ये सब दिखा रहा है. ठीक है, 2 साल का एवरेज ले ले. एवरेज तो लेंगे तो अच्छा ही होता है ना. फिर भी ठीक है. और काफी स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने. निर्मला सीतारामन जी अपने बजट में टैक्स काटी है, अर्बन मिडिल क्लास को बूस्ट दिया है. और मल्होत्रा साहब ने इतने अच्छे रेट कट्स करके सबका दिल खुश कर दिया है. और मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट आ रही है आरबीआई मीटिंग, एक और ब्याज दर कट होगा ताकि आप और भी चीजें जाके बाय नाउ पे लेटर कर सके. चलिए,
लेकिन HDFC बैंक के रिजल्ट्स में मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। एक मुझे एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर है, वो कहता है कि मैं आपकी आंख देखूंगा तो मुझे पता पड़ जाएगा कि आपके बॉडी में क्या क्या चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, हार्ट कैसे चल रहा है। मैं HDFC बैंक की रिजल्ट्स में देख के नज़र मार के मुझे काफ़ी कुछ पता पड़ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी कैसे चल रही है। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी में बड़ी बैंक तो SBI है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत बड़ी है और बड़ा नाम है। इसके देख के मुझे थोड़ा सा भय हो गया। और HDFC बैंक का स्टॉक भी मत भूलेगा, ऑलवेज हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट इन द मार्केट्स। देख रहा है कि थोड़ा कंज्यूमर हिल गया है और डेट पेइंग कैपेसिटी भी कम हो रही है और इतने अच्छे आंकड़े नजर नहीं आ रहे। हेल्थ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इतना मजा नहीं आया HDFC बैंक के रिजल्ट देख के। तो ये पीरियड, जहाँ तक मार्केट का सवाल है, एक पीरियड ऐसा आ रहा है जो अच्छी गिरावट भी देगा शॉर्ट रन फ्यू मंथ्स के अंदर। एक पीरियड ऐसा आ रहा है जो अच्छा वन वे ऊपर राइज भी देगा, क्योंकि जितना गवर्नमेंट आके और ब्याज दर वगैरह जोर जोर से जल्दी से घटाएगी तो एक प्रोत्साहन भी मिलेगा, उस पर मार्केट भी उत्साहित होगा। जिस पीरियड पे वो रुक जाएगी, घटाने का काम नहीं करेगी, उस वक्त मार्केट जो है हिल जाएगा, गिरेगा। ठीक है, तो ये पीरियड्स कब आ रहे हैं हमें साइंटिफिकली कैलकुलेट करके आपको देने दीजिए। आप अपना जो है ट्रेडिंग एंजॉय करिए, हमें जो कठिन काम है हमें करने दीजिए। नंबर है संपर्क करने का 9820861044। वन डे प्रेडिक्शन इन एडवांस या 1 वीक प्रेडिक्शन इन एडवांस ज्वाइन जरूर करिए। जो प्रीमियम वैल्यू प्लस ज्वाइन करते हैं उसको हम एक 5 मिनट हमारे से बात करने का भी मौका दे रहे हैं। इनहेरिटेंस का प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, कोई प्रश्न किसी को उठ रहा है, उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। 9820861044 इस नंबर पे आज ही संपर्क करें। नमस्ते।